اگر یہ بات تم نے آج نہ سنی تو کل قیامت کے میدان میں یہی بات تمہارا سب سے بڑا پچھتاوا بن جائے گی۔ زمین کے پہلے باشندے، جنات کی داستان خاموشی سے پہلے جب کائنات میں سکوت تھا، جب وقت کی رفتار آہستہ تھی، اس دور میں ایک نئی تخلیق کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ کوئی عام مخلوق نہیں تھی، نہ مٹی سے بنی نہ پانی سے، بلکہ شالوں اور آتش کی لپٹوں سے تشکیل پانے والی ایک منفرد ہستی تھی۔ ایسی مخلوق جو انسانی آنکھوں سے پوشیدہ رہتی مگر دنیا کو اپنی نظروں میں سمیٹے رکھتی۔ یہ وہ مخلوق تھی جسے انسان کی تخلیق سے ہزاروں برس قبل زمین کی حکمرانی سونپی گئی۔ یہ کون تھے؟ یہ جنات تھے۔ یہ کہانی کتنی پرانی ہے؟ تاریخ کے صفحات سے بھی پرانی۔ وہ زمانہ جب صرف سناٹا تھا، جب زندگی کا کوئی نقش نہیں تھا۔ مگر یہ خاموشی دراصل کسی عظیم واقعے کی تیاری تھی۔ زمین اپنے پہلے حکمرانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ یہاں تو زندگی کا کوئی نشان نہیں۔ ابھی نہیں، لیکن یہ ویرانی زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ اس وقت یہاں صرف آگ کے شعلے تھے، دھواں تھا، مگر یہ محض ویرانی نہیں تھی، یہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ زمین کے اب اس حصے پر میرا قبیلہ ہوگا۔ حد میں رہو، ورنہ وہ جنگ ہوگی جو آسمان نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ وادیاں ہماری ہیں، یہاں کا قانون صرف طاقت ہے، پھر جو طاقت اور ہے حکمرانی اسی کی ہوگی۔ اور یہاں کوئی دوسرا قدم رکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ جہاں تک نظر جاتی ہے یہ سب ہمارا ہے۔ ہمارے قبیلے اب مشرق سے مغرب تک پھیل چکے ہیں۔ یاد رکھنا، جتنے سر ہوں گے اتنے ہی جھگڑے ہوں گے۔ یہ زمین میری ہے، میرے سوا یہاں کوئی سر نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس زمین کو عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ قبرستان بن گئی۔ انہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ جب اللہ تعالی نے جنات کو تخلیق فرمایا تو انہیں ایک خاص آزمائش کے لیے چنا۔ قرآن مجید میں سورہ الحجر میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا، اور ہم نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا، ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہوتا۔ انسان کو ٹھنڈی مٹی سے بنایا گیا جو جم جاتی ہے۔ فرشتوں کو نور سے تخلیق کیا گیا جو محض نیکی اور روشنی ہے۔ لیکن جنات کو شدید بھڑکتی آگ سے بنایا گیا۔ آگ کی فطرت کیا ہے؟ یہ سرکش ہے، بلندی کی طرف اٹھتی ہے، اس میں تیزی اور حرارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات کی فطرت میں جذبات، غصہ اور تیزی کا عنصر غالب رہتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو گناہ کی صلاحیت نہیں دیا، وہ صرف حکم مانتے ہیں۔ جانوروں کو شعور اور عقل نہیں دی، وہ محض جبلت پر چلتے ہیں۔ مگر جب جنات کو پیدا کیا تو انہیں وہ چیز عطا کی جو اس سے پہلے زمین پر کسی کو نہیں ملی تھی، بہت اختیار یعنی آزاد مرضی۔ جنات کو طاقت دی گئی کہ وہ چاہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ نیکی کا راستہ بھی اختیار کر سکتے تھے اور برائی کا بھی۔ یہ ایک عظیم آزمائش تھی۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے سوچا ہے اس کائنات کی عمر کتنی ہے؟ میں اور آپ اور ہمارے آباء و اجداد، ہم اس زمین پر کب سے آباد ہیں؟ تاریخ کی کتابیں کھولیں تو چند ہزار سال کا حساب ملتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں جائیں تو وہ کروڑوں سالوں کی بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک سچ وہ ہے ان سب سے اوپر ہے، اور وہ ہے میرے اور آپ کے رب کا سچ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا اس زمین پر ہمارا نام و نشان تک نہیں تھا۔ نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی عمارت، نہ کوئی ٹیکنالوجی،
और ना ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, जब हम नहीं थे तो यहाँ कौन था? क्या ये जमीन वैरान थी? क्या ये जंगल, ये पहाड़ खामोशी के मुस्कन थे? नहीं, अल्लाह की कोई भी तख्लीक बिला वजह नहीं होती। आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, बहुत पीछे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हज़ारों साल पहले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से मनक़ूल रवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से तकरीबन 2000 बरस कबल जिन्नात को ज़मीन पर बसाया गया। लफ्ज़ जिनका मतलब अरबी में है छुपा हुआ, ये हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये यहीं मौजूद होते हैं। जब जिन्नात ज़मीन पर आए तो उन्होंने हर सुम्मत में बसेरा कर लिया था। समंदरों के जजीरों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक, घने जंगलों से लेकर रेगिस्तानों तक। चूंकि उनका जिस्म आग और हवाई लुताफत से बना था, इसलिए फासले तय करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। वो जमीन की किशिश से इस तरह पाबंद नहीं थे जैसे हम इंसान हैं। शुरू में ये दौर एक अच्छा दौर था। जैसे हम खाते पीते हैं, जन्नात भी खाते पीते थे। जैसे हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं, नस्लें बढ़ती हैं, बिल्कुल वैसे ही जन्नात के यहाँ भी जोड़े बनाए गए और उनकी नस्ल तेजी से फैलने लगी। ये जमीन पर पहले बाइख्तियार तहजीब थी। लेकिन जैसा कि आग की फितरत है, वो ज्यादा देर सुकून से नहीं रहती। जब आबादी बढ़ी, नस्लें फैलीं, तो ख्वाहिशात भी पैदा हुईं। ये इलाका मेरा है, वो सरदारी मेरी है। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ये वो सोच थी जिसने आहिस्ता आहिस्ता उस आग की मखलूक के अंदर हसद और लालच के बीज बोने शुरू किए। कुछ इस्लामी मौरखीन ने लिखा है कि जिन्नात ने जमीन पर बड़े बड़े शहर तामीर किए। वो समंदरों के किनारों और पहाड़ों के दामन में अपनी बस्तियां बसाते थे। चूंकि उनके पास गैर मामूली ताकतें थीं, तेजी से उड़ना, भारी चीजें उठाना, इसलिए उनकी तामीरात और निज़ाम बहुत मुख्तलिफ था। ताकत का नशा चढ़ा तो मुख्तलिफ कबीलों में सरदारी की जंग छिड़ गई। एक कबीला दूसरे पर बर्तरी हासिल करना चाहता था। ये वो वक्त था जब जमीन ने पहली बार गुनाह देखा। इससे पहले जमीन पर सिर्फ अल्लाह की हम्दो सुना होती थी, लेकिन अब जुल्म शुरू हो चुका था। कुरान करीम में जब अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने सवाल किया, क्या तू वहां उसे पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगा और खून बिहाएगा? सोचने की बात यह है कि फरिश्तों को कैसे पता था, उन्हें गैब का इल्म तो नहीं था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि फरिश्तों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो जन्नात का अंजाम देख चुके थे। उन्होंने देखा था कि कैसे एक बाअख्तियार मखलूक ने जमीन को खून से भर दिया था। जिन्नात ने अल्लाह के अहकामात को पस-पश्त पाल दिया। वो शिर्क करने लगे, कमजोरों पर जुल्म करने लगे और जमीन पर बदतरीन फसाद मचा दिया। रवायात के मुताबिक अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए इन्हें में से डराने वाले और पैगाम पहुंचाने वाले भेजे ताकि वो बाज आ जाएं। लेकिन ताकत के नशे में चोर जन्नात ने इनकार कर दिया और सरकशी की हदें पार कर दी। जब पानी सर से गुजर गया तो अल्लाह की रहमत के साथ साथ अल्लाह का जलाल भी हरकत में आया। आसमान के दरवाजे खुले और अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों का एक अजीम लश्कर जमीन पर उतरा। ये वो ताकतूर फरिश्ते थे जो अल्लाह के हुक्म से अजाब लाते हैं। रवायात में आता है कि इनकी क़यादत वो कर रहे थे जो बाद में इब्लीस बना थे, जिसे इस वक्त उसकी इबादत की वजह से अज़ाज़ेल कहा जाता था और फरिश्तों की सफ में शामिल कर लिया गया था। जमीन पर एक हौलनाक मार्का हुआ। वो जन्नात जो अपनी ताकत के नशे में
खुद को खुदा समझ बैठे थे। जब उनका सामना अल्लाह के नूरानी फरिश्तों से हुआ तो उनकी सारी अकड़ खाक में मिल गई। फरिश्तों ने सरकिश और नाफरमास जिन्नात को चुन चुन कर मारा और उन्हें जमीन के आबाद हिस्सों से भगा दिया। ये जंग इतनी शदीद थी कि बच जाने वाले जन्नात अपनी जानें बचाने के लिए वैरान जजीरों, घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की तरफ भाग गए। यही वजह है कि आज भी कहा जाता है कि जन्नात का बसीरा वैरानों और समंदरों के दूर दराज इलाकों में होता है। जमीन को जालिमों से पाक कर दिया गया। तूफान थम चुका था। जमीन एक बार फिर पुरसकून हो गई थी। अब वो वक्त आ गया था जिसका फैसला अल्लाह ने अज़ल से कर रखा था, वो लम्हा जिसने कायनात की तारीख बदल दी। अल्लाह ने फरिश्तों को मुखातिब किया, बेशक मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जानते थे कि खलीफा का मतलब है ऐसी मखलूक जिसे इख्तियार दिया जाएगा। चूँकि वो जन्नात का इंजाम देख चुके थे, इसलिए उन्होंने डरते हुए और अदब के साथ अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, क्या तू ज़मीन में इसे पैदा करेगा जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? तब अल्लाह ने वो जवाब दिया जो आज हम सब के लिए उम्मीद की करन भी है। बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, उन्हें इल्म सिखाया और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस नई मखलूक के सामने झुक जाओ। सब ने सजदा किया सिवाय उस एक के जो अपनी इबादत के गरूर में मारा गया, इब्लीस। उसने तकब्बुर किया, मैं आग से हूँ और ये मिट्टी से। और यूं जन्नात का वो आबिद शैतान बनकर धत्कार दिया गया। इंसान से पहले की दुनिया की ये कहानी हमें सिर्फ माजी नहीं बताती, बल्कि हमें हमारा मकाम याद दिलाती है। अल्लाह ने जिन्नात की हुकूमत ख़त्म करके ये ज़मीन हमें सौंपी है। हम इस ज़मीन पर अल्लाह के खलीफा हैं। लेकिन ये अमानत है, आजमाइश है। जन्नात ने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया तो तबाह हो गए। अब ये हम पर मुनहसिर है कि हम इस अमानत को कैसे निभाते हैं। याद रखें, ताकत हो या इख्तियार, ये सब अल्लाह की अमानत हैं। तकब्बर और सरकशी का अंजाम हमेशा तबाही है। जिन्नात की कहानी हमारे लिए इबरत है, एक याद दहानी है कि असल कामयाबी अल्लाह की फरमान बरदारी में है, ना कि ताकत के नशे में।